अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद के थाना खुर्डियांवाला की हदूद में एक नौजवान का कत्ल। दो मुखालिफ पार्टियों की एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश, लेकिन हक़ाइक़ इंतहाई चश्मकुशा। भाई ही भाई का कातिल निकला। क्या वजह थी और हक़ाइक़ क्या है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है आज थाना खुर्डियांवाला का एक नवाही इलाका है, चक नंबर 77 रेबे लौके, जहाँ पे एक नौजवान का कत्ल होता है। ये कत्ल पुलिस के लिए मुहिम्मा बन जाता है, क्योंकि मुदय्यान और फैमिली जो है उन्हें ये शुबा होता है कि ये हमारे जो देरीना मुखालिफिन हैं उनका काम है। पुलिस इस मुहिम्मे को हल करने के लिए दिन रात एक करती है। टीम मुजरिम कौन इस वक्त लवाहिकीन के साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं कि नौजवान क्यों कत्ल हुआ, कैसे उसको कत्ल किया गया। टीम मुजरिम कौन उसी हवेली के सामने उसी खानदान के साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी दस्सिओ कि कत्ल होने वाला तुहाडा की लगदा? मेरा बेटा वा 21 साल ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦਾ ਹੋ? ਵਾਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਆਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ? ਛੋਟਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਸਮਾਨ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਅਲੀ ਮੈਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਲੀ ਜ਼ਬੈਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤਾ, 4 ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਰੱਜ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਨਾ SHO ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ, ਵੇਲੀ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਬੈਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਲੀ ਮੈਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਰੋਏ ਪੜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਚਕਾਇਆ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੱਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਤਲ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ FIR ਦਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਇਆ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮਾਲੂਮ ਲੋਕ ਸੀ, 4 ਲੋਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਮੂਲ 4 ਲਿਖਾਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾਮਜ਼ਾਦ ਪਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੜੇ ਨੂੰ, ਥਾਣੇ ਜੇਲੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਰੇ ਮਾਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਰਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਹੱਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਵਾਤਾ ਇੱਕ ਚਕਾਤਾ। ਰਾਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। 4 ਬੱਚੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਆ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਇਸੇ 302 ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਭਾਈ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਅਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬੈਰ ਜਿਹੜਾ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਘਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਲੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਯਤੀਮ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੋਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਪਾਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੁਤੇਲਾ ਭਾਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਆ, ਸੁਤੇਲਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆ ਬੱਚੇ ਦੋ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਖਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਪੂਰੇ ਫਜਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਠਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਐਸਐਚ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਖੱਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਪਾਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਦਈ ਕੇ ਗਵਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾੜੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਐਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। वजह की ਉਹਦੀ वजह पता नहीं की वजह, वो पैसा खादा उन्होंने। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन उस मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद है जिनका जवान बेटा कत्ल हुआ। पुलिस के लिए और फैसलाबाद पुलिस के लिए ये चैलेंज था। जो मुतासरा ख़ानदान है उनका ये कहना है कि हमारे मुखालफिन ने साजिश के तहत हमारा बच्चा मर्डर करवाया और फिर दूसरे बच्चे को जो है वो उसमें कातिल बनाकर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये अपनी जगह पे इंसाफ के तलबगार हैं, जबकि पुलिस का वर्जन टीम मुजरिम कौन अभी आपको सुनाए। नाजरीन, एक नौजवान कत्ल होता है और ये कत्ल गांव वालों पर क़यामत ढा देता है। जहां पे ये कत्ल पुलिस के लिए एक मुहिमा था, वहीं पे मुतासरा ख़ानदान के लिए भी किसी अजाब से कम न था, क्योंकि पुलिस कुछ दिनों के बाद उसी मकतूल के भाई को इस शक में उठा कर ले जाती है कि कातिल ये है। मुतासरा ख़ानदान यानी नाना और नानी जो है मकतूल के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, अपना नाम दसियो जी। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ। गुलाम फरीद साहब, तुसी नाना अबू हो, ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਸਟਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੜੀ ਚੁੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੂੜੀ ਚੁੱਕ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਦਫਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਵਾ, 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਤਾ। ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਆਏ। ਇਹ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ 8-8:30 ਵਜੇ ਹਵੇਲੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਹਵੇਲੀ ਗੱਲੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਰਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਤਰਫੋਂ ਡਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿਆ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਕਿਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਲਾਕ ਕਿਸੇ ਚਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਦੇ?
ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 1/5 ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਅੱਗੇ 1/11 ਦੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ, ਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਾਲਾ ਹੋਈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੈਰ ਵਜਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਮੁੱਗ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਸਾ ਸਾਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਵੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਵੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 4 ਜਣੇ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖੇ, ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸੇ ਦੋਤਰੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖਾਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸੀ ਕਿਤੇ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਰਾਬੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ चुक के ले गया। नाजरीन, बूढ़ी उम्र में इन भीगी हुई आंखों का सवालिया निशान, शायद कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता कि जवान मौत का दुख सहना ख़ानदान के लिए कितना मुश्किल होता है। और हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई ये कत्ल की वारदातें शायद पूरे मुआशरे के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है पुलिस स्टेशन खुरड़ियावाला में और आज बात हो रही है चक नंबर 77 रेबे लौके में एक नौजवान कत्ल होता है। मकतूल का ख़ानदान अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम धरता है, पुलिस हरकत में आती है। इब्तदाई तौर पर पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है, लेकिन पुलिस की जब तफ्तीश फाइनल होती है तो ऐसे चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आते हैं जिसे देख कर और सुनकर इंसान दंग रह जाता है। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं SHO थाना खुरड़ियावाला सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ असलम गोंदल साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या केस था, कैसे रिपोर्ट हुआ और एक इसमें ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया, ये क्या माजरा है? इस तरह है, मरखा 29/8/2025 को हमें बजरिया 15 एक इतला मिलती है कि एक नौजवान शख्स को 77 रेबे लोके में बजरिया फायर कत्ल कर दिया गया है। जो हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी टीमों के साथ मौका पे पहुंचते हैं, मौका को सेव करते हैं, वहाँ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो मौका पे जो इनके लायकीन हैं मकतूल के, उनसे पता जोई की गई कि भी किसने इसको कत्ल किया, तो वो कोई भी वाज़ह बात बताने से गुरेज़ां थे। इवन के वो ये भी नहीं कह रहे थे कि इसको हमारे मुखालफिन ने कत्ल कर दिया है, बस इसी तरह वो कोई भी सीधी बात जो है वो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेचीदगी हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा हुई। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी तफ्तीश के दायराकार को वसी किया तो फिर हमें हक़ाइक़ जो है वो पता चलने शुरू हो गए कि बेसिकली ये इसको मर्डर इसके अपने ही सुतीले भाई ने किया है, जबकि ये अपने मुखालफिन के ऊपर ये मर्डर डालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सर, ये इब्तदाई तौर पर ये एक ब्लाइंड मर्डर था और FIR में उन्होंने ये दर्ज करवाया कि जी 4 नामालूम लोग जो हैं वो उसको कत्ल करके फ़रार हो गए। तो क्या जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी पुलिस ने उनको भी पहले राउंड अप किया, उनको शामिल तफ्तीश किया? जी बिल्कुल, इनकी गुज्जर बरादरी के साथ दुश्मनी थी। साबका 302 का एक मुकदमा चल रहा था जिसमें ये जो मुद्दई है मोहम्मद अफजल, इसका एक भाई है अरशद, वो ऑलरेडी 25 साल सज़ा काट रहा है, और दूसरी तरफ से गुज्जर बरादरी का एक शख्स जो है वो भी 10 साल सज़ा काट रहा है। तो पहले तो हमने इस केस को उसी तनाज़र में देखा था,
लेकिन उसके बाद जो आस्ता आस्ता जब तफ्तीश का दायरा कार वसी हुआ तो तब पता चला कि बेसिकली ये मुखालफिन ने नहीं बल्कि इनके अपने ही बंदे ने कत्ल किया। अच्छा सर, मुखालिफिन को जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो उनको ज़ाहिर है एक तो पुलिस की अपना स्टाइल ऑफ इंटेरोगेशन है, दूसरा उनकी उसकी कंफर्मेशन के लिए क्या कुछ ये जो टेक्निकल सोर्सेज हैं इनको बरूए कार लाया जाता है, इनको यूटिलाइज़ किया जाता है कि ताकि अगर एक शख्स है फ़र्ज़ करते हैं कि वो कहता है कि मैं उस वक्त फ़लाँ जगह पे था, तो क्या इस तरह का जो हसास नौयत का केस होता है ख़ास तौर पे जो मर्डर है उसमें उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है बजरिया टेक्निकल सोर्सेज या CDR वगैरह लोकेशन वगैरह कि जो कह रहा है ये वाकई ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल, जब भी कोई मुलज़म हम इंटेरोगेट करते हैं तो उसकी हर पहलू से उसकी तहकीकात की जाती हैं, टेक्निकल वसाइल भी, CDR जैसे आप कह रहे हैं, लोकेशंस वगैरह, उसके अलावा दीगर जो चश्मदीद गवाह होते हैं उनके हवाले से भी चेक करते हैं, CCTV कैमरा जात को भी चेक करते हैं। तो तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख के उसके बाद ही कोई फ़ाइनल डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस मर्डर केस में जो मुल्ज़िमान तक आप पहुँचे वो काफ़ी दिनों तक पहुँचे, क्योंकि पुलिस को मुख्तलिफ एंगल से अपनी तफ्तीश को जारी रखना था। जब बंद गली में पुलिस दाखिल हुई तो फिर एक होता है कि उस वक़्त तक काफ़ी चीज़ें मैच्योर हो चुकी होती हैं। अब जो जिनका नुकसान हुआ है, जिनका कत्ल हुआ था, ज़ाहिर है ऑब्वियसली भाई ने ही भाई को कत्ल किया था, लेकिन वो ये कहते हैं जी कि पुलिस को इतने दिनों के बाद क्यों ख्याल आया कि जी अब वो इल्ज़ाम ये पुलिस पे लगाते हैं कि जी पुलिस हमारे मुखालिफिन से साज़बाज हो चुकी है, पुलिस के पास एविडेंस कोई नहीं है कि जी हमारे बेटे ने जो है वो कत्ल किया था। बताइएगा कि कैसे हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, क्या मुल्ज़िम ने जो है वो ये बात कबूल कर ली है, और दूसरा शवाहिद के तौर पर जो चीज़ें मैच्योर होती हैं जैसे आला कत्ल है वो क्या पुलिस ने उसको बरामद करवा ली? शुएब भाई, इस तरह के केसेस जो हैं वो बड़े पेचीदा होते हैं जिसमें हक़ाइक़ को बिल्कुल दूसरा रुख देने की कोशिश की जाती है। इनके अपने बंदे ने मर्डर किया, करने के बाद उन्होंने मुखालफों पे डाल दिया कि उन्होंने कत्ल किया, साबिक़ा दुश्मनी भी चल रही थी, फिर अब पुलिस को बड़ा मोहतात होकर इसमें आगे बढ़ना होता है। तो जब हम इस केस पे स्टार्ट हुए तो हमने सबसे पहले तो वो मुखालफिन जो इन्होंने बताए थे वो भी बड़ी मुश्किल से नाम ले रहे थे कि ये बंदे हो सकते हैं, कोई क्लियर बात बता नहीं रहे थे, तो हमने उनको भी बड़ी थॉरली इंटरोगेट। क्या इम्तियाज़ भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या ये भी एक तरीका होता है अपने मुखालिफिन को फंसाने का कि आप खुल के नाम भी ना लें और बताएं जी कि वो हमारा एक मर्डर हुआ था, हमारा पहले से चल रहा था, ताकि पुलिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्फर्म हो जाए कि ये इनका काम हो सकता है? जी बिल्कुल, ये चीज़ों को मिक्सअप करके अपने मकासद के हसूल के लिए इस तरह की कोशिशें करते हैं और इन चीज़ों को फिर बड़ा प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता है, तब जाके हक़ाइक़ सामने आते हैं। हमने जाए वकुआ देखा है, वो हवेली देखी जिसके दरवाजे पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, 2 गोलियां उसके सर में लगी। क्या आपको जब आपने मुल्ज़िम को पकड़ लिया तो उसने क्या बताया, कैसे उसने प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया? जी बिल्कुल, जब उसको अरेस्ट किया तो फिर उसने इंकशाफ किया कि मैं पिस्टल जो है वो हमारी छत के ऊपर एक चारपाई पड़ी हुई, चार के सरहाने के नीचे पिस्टल रखा हुआ था, क्योंकि वो साबिक़ा दुश्मनी के हवाले से उन्होंने कहा हमने अपनी हिफाजत के लिए रखते थे वेपन, लेकिन मौका पर तो वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे कि हमारे पास इस तरह का कोई वेपन नहीं है। जब बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला तो फिर हमने वो वेपन भी बरामद कर लिया था। आला कत्ल बरामद हो चुका है? जी, आला कत्ल इसमें बरामद हो चुका है और मुल्ज़म जो है वो उस पर FIR होने के बाद जुडिशल हो चुका है इसमें। तो बताइएगा वजह क्या बताइए आपने? ज़ाहिर है इंटरोगेट किया, ज़ाहिर है सारी बातें तो पुलिस नहीं बता सकती, प्री मेच्योर चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या बताता है क्या था इसको कि इसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया? सौतेला ही सही, लेकिन माँ एक थी, बाप अलग अलग हैं, उसका पहला खामद जो है वो फौत हो गया, उसके बाद उसने दूसरी शादी की, तो क्या वजह क्या थी? एक भाई दूसरे भाई की जान क्यों लेगा? शुएब भाई, जिस तरह रोज़े अव्वल से ही जन ज़र और ज़मीन का तनाज़ा चलता आ रहा है, इसमें भी बेसिकली जन का ही इशू था। एक औरत थी जिस पे ये दोनों भाई जो है वो उससे शादी करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इनका कबल अज़ीम भी 1-2 दफ़ा झगड़ा हुआ है। तो बेसिकली कत्ल होने की वजह यही थी कि ये लड़का जो है ज़ुबैर मकतूल जो है ये भी उसी को चाहता था और जो कातिल है अली उमैर वो भी उसी लड़की को चाहता था। सॉलिड और कंक्रीट केस क्या पुलिस फाइल कर पाएगी? क्योंकि अभी भी जो मुतासरा ख़ानदान है जिसका एक भाई कातिल और दूसरा मकतूल है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको ट्विस्ट दिया जाए, इसको पुलिस के ख़िलाफ़ किसी तरीके से पुलिस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके। वो शायद लोगों की सिंपैथी भी जो है वो गैदर कर रहे हैं। तो क्या पुलिस इतने कंक्रीट एविडेंस प्रोड्यूस कर पाएगी कि हर तरीके से जो है वो इसको साबित किया जा सके?
जी बिल्कुल, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, केस को हर तरीके से मजबूत बनाएंगे। हमने इसमें PFSA का भी जो है रोल उन्होंने अपना प्ले किया हुआ है, एविडेंसेस इकट्ठे किए हुए हैं। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। इसके अलावा जो खौल हैं वो भी लेबॉर्ट्री जा चुके हैं। ये पिस्टल भी जब लेबॉर्ट्री जाएगा तो वो चीज़ें मैच होंगी, तो इंशाल्लाह हम मजबूत से मजबूत केस इसको बनाएंगे। ये पुलिस का बहुत अच्छा काम है इम्तियाज़ भाई कि उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया। एक सवाल है मेरा, और हमारे नाजरीन भी ज़ाहिरी बात है ये जानना चाहेंगे कि एक शख्स कत्ल होता है और अगर मिसलीड करने वाली FIR का इंदराज अगर करवाया जाए, गलत FIR का इंदराज करवाया जाए, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की जा सके जिसने स्टेट को, जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिसलीड करने के लिए जानबूझकर जो है वो गलत FIR, क्योंकि ये डेवलप हो गया कि 4 लोग बिल्कुल भी नहीं थे, जिसने देखा कि मैंने देखा 4 लोगों को भागते हुए और ललकरा मार रहे थे। क्या ये गलत चीज़ें साबित होने पर ये चीज़ बैकफायर नहीं करती? क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है नहीं कि हम उस शख्स के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई कर सकें? बेसिकली जितने भी केसेस अगेंस्ट पर्सनस होते हैं उसमें पुलिस की भी ये मजबूरी होती है कि वो जो लोग कंप्लेनेंट होते हैं वो ही बता रहे होते हैं कि हमारे साथ जो इस तरह का वक़ूआ पेश आया है। तो आगे तफ्तीश तो वो पुलिस का काम है, तो फिर ये बड़ा टफ़ हो जाता है कि उन चीज़ों को गलत साबित करना। जहाँ तक बात है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की, तो नेचुरली जिन लोगों की डेथ हुई होती है, जिनका बंदा कोई मरा होता है, तो फिर लोगों की सिंपथी भी उनके साथ होती है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सॉफ्ट कार्नर जो अदारों के पास भी उनके लिए होता है, और जिसमें जुडिशरी जो है वो भी सॉफ्ट कार्नर रखती है। और अल्टीमेटली जो मर्डर केसेस होते हैं या ज़रर के केसेस होते हैं उनमें एक कानूनी तौर पर एक इनको छूट दी गई है कि अगर कंप्लेनेंट राज़ीनामा कर ले तो फिर वो उस चीज़ पे कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता, ना पुलिस कर सकती है ना जुडिशरी कर सकती है। तो चूँकि मकतूल भी इनके घर का है, कातिल भी इनके घर का है, इसलिए अगर वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है या वो बयानात दे देते हैं अदालत में, तो फिर उसमें जो है वो हमारे पास कोई दीगर ऑप्शन नहीं बचता। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ असलम गोंदल हमारे साथ मौजूद थे, SHO हैं थाना खुर्डियावाला में, और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे एक ही खातून के 2 उम्मीदवार भाई थे और इसी बिना पर सौतेले भाई ने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसने इस मामले को कैश इस तरीके से करने की कोशिश की कि इनकी एक देरीना मुखालफत थी, अपने मुखालफिन पर यह कत्ल डालने की कोशिश की। पुलिस ने हर तरीके से, हर एंगल से जब इस केस की तफ्तीश की तो फिर यही हक़ाइक़ सामने आए कि सौतेले भाई ने सौतेली भाई का मर्डर करके फ्रेम अपने दुश्मनों को करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा। मुलजिम अब पुलिस की हिरासत में है और उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस तैयार करके उसे करार वाक़ई सज़ा भी दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना खुर्डियावाला के नवाही चक 77 रेबे इलाके में, जहाँ पे एक नौजवान कत्ल होता है और फिर लवाहिकीन जो हैं अपने देरीना मुखालफिन का नामजद करवा देते हैं। उन्हें ये शक होता है कि उसको कत्ल उनके मुखालफिन ने किया है, जबकि जब पुलिस तफ्तीश करती है तो तफ्तीश के बाद उसी का भाई जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मेरे साथ दूसरे फ़रीक़ैन जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, जिनकी उनके साथ कोई देरीना मुखालफत है, वो मौजूद हैं। उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, इस कत्ल से उनका किस हद तक ताल्लुक़ था या नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम दस्सिओ अपना। रशीद जी। रशीद साहब, की मामला है ये? की होया है? एक बच्चा कत्ल होंदा है, उस बच्चे दे कत्ल दे विच तुहाडा नाम आउंदा है पहले, फिर उस तो बाद पुलिस जिहड़ी है ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ 12 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਥਾਣਾ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਰਾ ਕਾਤਲ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰਹਿ 12 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ। ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਕਲੀਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਪਿਛਲੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਕੂਆ ਵਾ 2022 ਦਾ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 12 ਤਰੀਕ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਕੂਆ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਕਿ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਿਛਲੀ ਖੇਡ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਲਏ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੂੜੀ ਤੋਂ? ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਡ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ नाज़रीन इकराम, अहले खाना हमारे साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये वो मुतासरा ख़ानदान है जिनके ऊपर कत्ल का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया, जिनके ऊपर ये मुबैना तौर पर मकतूल पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमारा कत्ल इन्होंने किया, जिनके साथ इनकी दरीना दुश्मनी है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, तुसी की तुहाडा मामला है? पहले तुहाडे खानदान का कोई बंदा एक मर्डर होया, वो की मामला? हाँ जी बहु मामला कोई भी नहीं। पहला जो मंडल होया साढ़े कोठे पिछे उन्होंने तूड़ी लाई सी। मेरे घर दे मियाँ ने कहा आन के बई तूड़ी जरा ठा के ला लो, कंधे नाल लाई आ। उन्होंने उठिया तो लड़न डै पे तो मेरा देर गया तो उन्होंने गोली मारी तो मेरा देर मारता। अच्छा, जो पहले कत्ल होया तुहाडे देवर सी? हाँ जी, वो मेरा देर सी, ये घर दा सी, ये घर दा सी। तो वो हुण उन्हों का बंदा भी अंदर, मेरे बंदे नजायज उन्होंने फसाता 10 साल। तो हुण मेरे बच्चे तिन्ने ही घर सी, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਫੈਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇhtiyat ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਕਰ। ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੰਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 12-13 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਹੀ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗਨਾਹ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ बाजी दे शौहर ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। मैं कोशिश करता हूँ नाज़रीन के नाम बात करने की। बाजी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ, 2 ਬੇਟੇ। ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 13 ਸਾਲ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਚ ਲੱਗੀ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਚ। ਆਹ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ? ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਆ ਮਿਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆੜੀਆਂ ਅਤੂੜੀਆਂ ਛੂੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਖਤੂਨ ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮੇਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਣਾ है इंशाल्लाह? ਹਾਂਜੀ, बिल्कुल बिल्कुल ਆਦਾ ਭਾਈ। नाज़रीन इकराम, ये गांव देहात की दुश्मनियां कई जाने ले चुकी हैं, लेकिन यहाँ थाना खुर्डियांवाला की हदूद में जो वाक़या पेश आया वो इस लिहाज से मुनफरिद था कि पुलिस तफ्तीश में भाई का कातिल निकला, जबकि मकतूल के अहले खाना ने अपनी एक दरीना दुश्मनी का बदला लेने के लिए जो है अपने मुखालिफिन को इसमें फंसाने की कोशिश की। इनके कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, पुलिस के पास ज़रिए तफ्तीश भी रहे। पुलिस का मौक़िफ़, पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए थाना खुर्डियांवाला चल। नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन खुर्डियांवाला सब इंस्पेक्टर नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि क्या ऐसा केस था ये जिसमें एक नौजवान की मौत ने पुलिस को पहले बंद गली में दाखिल रखा। पुलिस को कितनी मेहनत करना पड़ी इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में, और फिर जब पता ये चला कि उस कत्ल होने वाले नौजवान का अपना ही भाई उसका कातिल है, तो फिर
पुलिस किस मुकाम पे खड़ी थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या हर्डल्स आई, ये जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन खुड़ियांवाला सब इंस्पेक्टर नज़र से। अस्सलाम वालेकुम नज़र भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मामला था, क्या माजरा था, रिपोर्ट कैसे हुआ, रिस्पॉन्ड कैसे किया आपने और आपकी टीम ने, और फिर कैसे कैसे जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ी? जी 15 पे कॉल 29/8/25 को तकरीबन शाम को हमें कॉल मसूल होती है भी ज़ुबैर नामी शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया। चेक नंबर 77 77 रेबे लौके में 77 लोके में। तो मौका पे पहुंचते हैं, इतला पाकर साहब भी SHO साहब हमारे ऑफिसर बकाया साहब मौका पे आते हैं, तो डेड बॉडी को हॉस्पिटल उस वक्त ट्रांसफ़र करते हैं उसको। तो उस वक्त तक उन्हें हमें कोई वो वाज़ह नहीं करते मदई फरीक भी इसको किसने मर्डर किया है। भी 4 लोग आए थे, इधर को चले गए, बाइक पे आए, इधर को चले गए। कौन थे, क्या थे, कुछ नहीं बता रहे। उनका हुलिया शुलिया कोई नहीं, इस लिहाज से जो उन्होंने हमें तफसील बताई थी उसके मुताबिक हमने CCTV कैमरा जात मौके पे ही चेक किए, और जो भी हमें कुछ वाह नज़र आ रहे थे हमने कोशिश की भी मुल्ज़मान जो नामालूम हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश करें। तो गाँव देहात का नज़र भाई जो है एक उसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आपको बहुत सारे कैमराज नहीं मिलते, कहीं कहीं किसी चौक में, या हो सकता है कोई जो साहिब सरवत है उसके घर में कैमराज हों, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे गांव देहात में जो है इस तरह के केस को सॉल्व करना। बिल्कुल कैमरा ज़्यादा कम तादाद में थे उधर, लेकिन फिर भी जो पब्लिक है, जो वहाँ पे लोग हैं, वो हमें ज़रूर बताते हैं भी इस टाइम में कोई लोग इधर को गए हैं, वो हमारे साथ तावन ज़रूर करते हैं भी जो भी हकीकत हो पुलिस को बयान की जाए। लेकिन उस वक्त भी हमें कोई इस तरह का वाज़ह कोई उन 4 लोगों के मुतल्लिक वाज़ह नहीं हुई हकीकत भी उन्होंने 4 लोग आए इधर को गए या इधर को, किसी ने हमें उसकी कोई शवाहद नहीं दिए। पहले ही राउंड में जब पुलिस इंटरोगेट करती है तो आप लोगों को काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका था कि जैसे ये 4 लोग बता रहे हैं ऐसा कोई सीन नहीं है, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाया? हाँ बिल्कुल डाउटफुल तो उसी वक्त हो गया था वकूआ थोड़ा सा भी, फिर लेकिन हम उन्होंने जो हमें एप्लीकेशन दी, जो FIR करवाई, उसके बाद मज़ीद हमने इसको जांच पड़ताल शुरू कर दी इस वकूआ के मुतल्लिक। और फिर इनकी जाहिर है इनकी एक 3 साल पुराना एक और मर्डर केस था, इनकी आपस में मुखालफत चलती आ रही थी, सबसे पहला शक तो ऑब्वियसली मुखालफों पे जाता है, फिर क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया? हाँ जी, ये गुज्जर बरादरी और मलक बरादरी, जो इनमें जो मलक बरादरी के लोग हैं इन्होंने कत्ल में वो मतलब 25 साल कैद में है। एक इनका भाई मदई का, उसका नाम है अरशद, इसी मलिक ग्रुप का। तो उस वक्त जब वकूआ हुआ उसके बाद हमने कोशिश की भी इसको जो असल मुल्ज़मान है ना उनको ट्रेस करें। फिर गुज्जर बरादरी पे जिन पे हमको भी शक था या उन्होंने भी शक ज़ाहिर किया, तो हमने हर तरीके से हर एंगल से उनको इंटरोगेट किया, चेक किया, जो भी शवाहद आए, तो कोई भी ऐसी बात उनमें सामने ना आई है भी ये इन्होंने वकूआ किया है या गुज्जर बरादरी की तरफ से कोई वकूआ हुआ है। उनके तमाम लोगों को नज़र भाई आपने ज़ाहिर है चेक किया होगा, जितने भी उनके नौजवान हैं या ऐसा कोई मेल कोई फीमेल, तमाम लोग उनको ज़ाहिर है आपने फ़र्दन चेक किया होगा कि वकूआ के वक्त ये कहाँ था, ये क्या कर रहा था, उसको आपने क्रॉस एग्ज़ाम भी किया होगा, फिर लोगों से पूछा भी होगा। हर तरीके से तसल्ली करने के बाद ही पुलिस किसी और एंगल पे सोचती है। जी, जब हमें हर तरीके से हमने अपनी इंटरोगेट की, मौका से भी, लोगों से भी, खुफिया तौर पे भी, अपना खुफिया तौर पे भी इंटरोगेट की भी ये लोग जिनको ये कह रहे हैं भी इन्होंने वकूआ किया है, लेकिन उनके मतलब कोई किसी किस्म की ठोस शहादत हमारे पास नहीं आई भी इन्होंने कोई वकूआ किया है। उसके बाद हमने अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी किया, जो हमें डाउट था उसकी तरफ हम चले भी, इसमें देखें भी इसमें से कोई इनकी फैमिली में कोई ऐसा जो बात हमारे तक आई थी उसको हमने चेक करना शुरू कर दिया। जाहिर है जब हर तरफ से होता है तो फिर ये भी लाजमी होता है कि घर के अंदर ना खुरा निकल आए कहीं, और फिर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमने जब अली उमैर को हिरासत में लिया तो उसने सारा बयान अपना दिया, उसने कहा जिससे हमें वाज़ह हो गया भी ये कत्ल जो है इनके घर में ही है, फैमिली डिस्प्यूट था इनमें, भाइयों में थोड़ा सा, एक खतून थी कोई इनकी रियलिटी भी, उस पे जो ज़ुबैर था उसकी भी थोड़ी सी आंख थी, और ये छोटा भाई जो उसका अली मैर है ये भी उसी का उसे ये आजकल का सो कॉल्ड प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये इस कदर इंसान को अंधा कर देता है कि इंसान अपने भाई की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। बिल्कुल जी, उस वक़्त फिर उनको इतना इश्क में अंधे हो जाते हैं भी भाई के रिश्तों का
कोई लिहाज नहीं रखते भी भाई मेरा हकीकी भाई है, इसको मारने से मुझे प्यार मिल जाए या कोई और तो मिल जाए। तो इसी को उन्होंने जब वकूआ कर लिया तो उसके बाद हमें जो वकूआ के मुतालिक इत्तला मिली तो फिर इन्होंने वहाँ पे इकट्ठे हो गए सब। उन्होंने नजर भाई फिर क्रॉस चेक करने के लिए क्या फिर उस खातून जिसके इश्क में ये दोनों भाई मुब्तला थे, क्या उस खातून को भी पुलिस ने इंटेरोगेट किया, पूछा सही उसे या नहीं? नहीं, उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट के लिए हमने फिर वो उस तक नहीं कोशिश की भी, इनकी इज़्ज़त है। लेकिन चीज़ें कंफर्म हो गई आप? चीज़ें कंफर्म हो गई। जब वकूआ हुआ था उसके बाद जो जिस तरह वकूआ हुआ उन्होंने वो जो कातिल था उसको कहो भी चुप कर जो, उसको उस वक्त मौके पे मारा पीटा भी उन्होंने। जो लोग इकट्ठे हुए उनके कहा हम वकूए को खुद संभाल लेते हैं। उनका वाला उन्होंने इस तरीके से कि अपने मुखालिफिन पे डाल दिया। बिल्कुल, उनका जो पीछे मोटिव था भी वो जो अरशद है उस वक्त उन्होंने बातें की हैं भी जो अरशद है हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो आपके लिए ये चांस था कि हमारा एक भाई ने भाई मार दिया है, कत्ल हो गया है फैमिली में, तो इस कत्ल को जब मुखालिफिन पे डाल दिया। बिल्कुल यही उनका पीछे मोटिव यही था। नाज़रीन इकराम, कातिल या कत्ल कभी छुपता नहीं है, और अगर फैसलाबाद में खुर्डियांवाला पुलिस की तरह की टीम हो जो बाल की खाल भी उतार लेती है इन्वेस्टिगेट करते हुए, इंटेरोगेट करते हुए, पुलिस ने इस मुकदमे में अपनी पेशेवराना महारत को इस्तेमाल किया, अपने प्रोफेशनलिज्म को इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बेगुनाह को कत्ल जैसे संगीन मुकदमे में मुलव्वस होने से बचाया, और पूरी तहकीक के बाद ये बात इस्टेब्लिश की कि कत्ल होने वाले का अपना ही भाई कातिल है और अब उसे सज़ा भी दिलवाई जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह फैसलाबाद के इलाके थाना खुर्डियांवाला के नवाही चक नंबर 77 रेबे इलाके में एक नौजवान कत्ल होता है। दो फ्रीकैन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं और पुलिस की तफ्तीश में चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आते हैं। एक नौजवान अपनी जान से गया, दो मुखालिफिन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। अब इस सब का मुजरिम कौन, फैसला आपका। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।